Hello students, I am back with another video. In today's video, I would like to talk about vocabulary used to talk about COVID-19. I think it's going to be very useful for your IELTS exam. And apart from that, it will also help you in your day-to-day life because these days, news and debates about COVID-19 are all over the social media, newspapers and TV news. So this is the very first word that we'll take up, COVID-19. It's basically short for Coronavirus Disease 2019. CO for Corona, VI for virus and D for disease, which appeared in 2019 for the first time. So many people call it just coronavirus. Some people also call it novel coronavirus. So how do you say that somebody has this disease? You can say he has COVID-19 or he has coronavirus, or he has tested positive for COVID-19 or coronavirus. Now let's see what a virus means. Virus is an infectious non-living molecule that can multiply only in living cells of animals, plants or bacteria. It is basically a submicroscopic molecule. It is too small to be seen with an ordinary microscope. And the sentence example is, boiling water can kill most pathogens, including viruses and bacteria. And from virus, we have a word viral. So if you have a viral infection, it is caused by a virus. The next word is pathogen. A pathogen is a microorganism, that means a very small organism or germ, such as a bacterium or virus, that can cause disease. Example sentences, fortunately, the body's immune system is capable of dealing with most pathogens. हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, डिफेंस सिस्टम, वो ज़्यादातर पैथोजेंस के साथ डील कर लेता है, उनके साथ फाइट कर लेता है, एंड दैट इज़ हाउ वी रिमेन हेल्दी. The next word is contract. See, I want to make one thing clear. I am discussing here only those meanings which apply to health, disease and coronavirus. वैसे कॉन्ट्रैक्ट का एक मतलब लीगल एग्रीमेंट भी होता है, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट. If you want to find out other meanings of these words, you should consult a dictionary. So from coronavirus point of view, the meaning of contract is to catch or develop a disease or infection. To catch an infection. Example sentences, if you contract coronavirus, you should immediately isolate yourself so that you don't spread the infection. The next term I would like to discuss is animal-human interface. Any point where animals, domestic or wild, and humans meet. कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे humans का और animals का, wild या domestic animals का आपस में contact होता है. Example sentence, animal diseases can potentially pass to humans at any animal-human interface such as a zoo, farm or meat market. And you must be knowing this is how coronavirus originated in China from a meat market basically. The next term is zoonotic. वैसे नाम से समझ आ रहा है, zoo से मतलब it's related to animals. Zoonotic का मतलब होता है disease that can be transmitted from animals to humans. Actually, coronavirus is not the first disease that has passed on from animals to humans. In the last 2 or 3 decades, there have been many such diseases which have come from animals. I would just like to list a few for you. The first one is SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. ये चाइना से originate किया था. Then MERS, Middle East Respiratory Syndrome. ये सऊदी अरेबिया में पहली बार पाया गया था. Mad Cow Disease, ये पहली बार यूके में पाया गया था. इट्स अ न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़, ये ब्रेन को अफेक्ट करती है. देन बर्ड फ्लू, अ वेरी डेंजरस फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंजा, ये भी चाइना से आया था. और स्वाइन फ्लू, अ डेंजरस फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंजा अगेन, ये यूएसए में पहली बार पाया गया था. तो इन सब बीमारियों के बावजूद लोग मीट खाने से बाज नहीं आ रहे हैं. आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे कम मीट इंडिया में खाया जाता है. Around 31% of the population in India is vegetarian. Another 9% are eggetarians. They don't eat meat, but they consume eggs. तो कुल मिला के आप सोच सकते हैं 40% तो हैं ही हैं जो मीट नहीं खाते. Of the remaining, only 30% of the population consume meat regularly.
अभी वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी लोगों को समझ आ रहा है कि मीट खाना जो है इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट लीड्स टू मैनी काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मैनी पीपल आर नाउ टर्निंग टू वेजिटेरियनिज्म. इनफैक्ट वेस्टर्न पीपल जो है दे आर गोइंग one step ahead. Instead of becoming vegetarians, they are becoming vegans. A vegan is a person who doesn't consume meat, fish, eggs, etc. Apart from that, he doesn't consume dairy products. No milk, no cream, and no cheese. And they also don't use any kind of animal products like leather bags or leather shoes. They have a plant-based diet and they use only those things that come from plants. The next word is outbreak. A sudden occurrence of a disease. एकदम से किसी डिजीज़ का शुरू होना और बड़ी तेज़ी से फैलना उसको बोलते हैं आउटब्रेक. एग्जाम्पल, द हेल्थ अथॉरिटीज़ should take immediate steps to contain the outbreak. Next is epidemic. Occurrence of a particular disease in a large number of people in a particular area. For example, London was devastated, तबाह हो गया, by the epidemic of plague in 1665 and 1666. The next word is pandemic, which is most commonly used with COVID-19 these days. Pandemic means occurrence of a particular disease throughout a whole country or the whole world. For example, the 1918-1919 Spanish flu pandemic killed 50 million people worldwide. So remember that epidemic occurs over a small geographical area, whereas pandemic occurs over a very large geographical area. The next word is transmit. Please remember the pronunciation of this word is transmit. जहाँ पे S है वहाँ पे Z की साउंड आनी चाहिए. The meaning of transmit is to cause a disease to pass from animal to human or from human to human. Example, many diseases are transmitted through physical contact. आफ्टर दैट वी हैव ट्रांसमिशन. इसमें भी जेड की आवाज़ आती है. ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ अ डिजीज फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन और फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन. ट्रांसमिशन इज बेसिकली द नाउन फॉर्म ऑफ ट्रांसमिट. ट्रांसमिट इज अ वर्ब एंड ट्रांसमिशन इज अ नाउन. ट्रांसमिशन के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि देयर कैन बी कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन व्हेन यू एक्चुअली कम इनटू कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन हु इज इन्फेक्टेड. देयर कैन बी ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, जैसे कोई ब्रीथ करता है, कफ करता है या स्नीज करता है एंड यू कम इन टू कॉन्टैक्ट विद दैट स्प्रे प्रोड्यूस्ड बाई दैट पर्सन. देयर कैन बी एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, जैसे आजकल कह रहे हैं कि COVID-19 इज इन द एयर. एंड देयर कैन ऑल्सो बी सरफेस ट्रांसमिशन. कुछ सरफेसेज होते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया या जर्म्स या वायरस होते हैं एंड यू कम इन टू कॉन्टैक्ट विद दैट सरफेस. नेक्स्ट टर्म इज ट्रांसमिशन रेट. बेसिकली ट्रांसमिशन रेट का मतलब होता है कि एक इन्फेक्टेड आदमी से और कितने लोगों को वो इन्फेक्शन होगा. ये एक मैथमेटिकल टर्म है जो ये दिखाती है कि कोई भी डिजीज़ जो है कितनी कंटेजियस है, कितनी इन्फेक्शस है, वो कितनी तेज़ी से फैल सकती है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय R0. एग्जाम्पल इज इन इंडिया द ट्रांसमिशन रेट ऑफ COVID-19 was 2.08 in April 2020 when COVID-19 started, but later it dropped to less than 2. तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब शुरू हुआ COVID-19 तो इसका ट्रांसमिशन रेट था 2.08. एक पेशेंट से आगे 2 या 2 से थोड़े से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे थे. The next term is patient zero. The person identified as the first to become infected with a disease in an outbreak. वो पहला बंदा जो उस इन्फेक्शन से बीमार हुआ था. आपको पता है कि COVID-19 ऐसा कहा जाता है कि बैट से आया था और चाइना के वुहान सिटी से ओरिजिनेट किया था. तो वो पहला आदमी जिसमें बैट से ट्रांसफ़र हुआ था ह्यूमंस में वो इन्फेक्शन, उसको बोलेंगे हम पेशेंट ज़ीरो. एग्जाम्पल है, कोरोना वायरस इमर्ज्ड इन चाइना but it is still not clear who patient zero was and exactly when that person got infected. असल में प्रॉब्लम ये है कि चाइना हैज़ बिन वेरी सीक्रेटिव अबाउट द होल इशू. चाइना ने अमेरिकन साइंटिस्ट्स को वहाँ पे रिसर्च नहीं करने दी. इवन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो इंस्पेक्टर्स थे उनको इंडिपेंडेंटली फ्रीली वहाँ पे सर्वे नहीं करने दिया. तो इसलिए पेशेंट ज़ीरो जो है उसका पता ही नहीं चला. अगर पेशेंट ज़ीरो का पता चल जाता तो उससे इस डिजीज़ के बारे में काफ़ी क्लैरिटी मिल जानी थी.
Next word is epicenter, the area where a virus is most active. वैसे ये वर्ड अर्थक्वेक के लिए यूज़ किया जाता है, वो पॉइंट जहाँ से कोई अर्थक्वेक ओरिजिनेट करता है. एग्जाम्पल सेंटेंस, although novel coronavirus started in China, later Europe became its epicenter. Next term is super spreader, a person infected with a virus who transmits or spreads it to an unusually large number of people. ऐसा बंदा जो बहुत लोगों को आगे इन्फेक्ट कर देता है. Example, a super spreader in my city infected more than 30 people. The next term is community spread. The meaning is transmission of a disease directly within a community and not by importation from a foreign source. देखें, जब वायरस स्प्रेड करना शुरू करता है इनिशियल स्टेजेस में, तो जो बाहर से लोग आ रहे होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं किसी भी कम्युनिटी में लोगों को. लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब बाहर के लोग इन्फेक्शन लेके नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपने उनको स्टॉप कर दिया है. कम्युनिटी में ही, पॉपुलेशन में ही आपस में लोग एक दूसरे को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं. और जब ये स्टेज आती है तो वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो बहुत फास्ट हो जाता है. एग्जाम्पल इज, द राइज इन द नंबर ऑफ न्यू केसेस सजेस्ट्स दैट वी हैव एंटर्ड द फेज ऑफ कम्युनिटी स्प्रेड. द नेक्स्ट वर्ड इज कंटेजस. इसमें आई साइलेंट होता है, इसको बोलते हैं कंटेजस. कंटेजस का मतलब अ डिजीज दैट कैन पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यूजली बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. एग्जाम्पल, द नोवल कोरोना वायरस इज हाईली कंटेजस. इसका मतलब बहुत तेजी से फैलता है. द नेक्स्ट वर्ड इज फेटल. फेटल का मतलब है जो डेथ कॉज करता है. इसके लिए और वर्ड्स हैं डेडली, लीथल, मॉर्टल, टर्मिनल. और एग्जाम्पल है कि कोविड-19 कैन बी फेटल. इट कैन कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन. The next word is symptom. It is a physical or mental indicator of a disease. कोई भी साइन, कोई लक्षण जिससे हमें डिजीज का पता चलता है. And I would just like to list some common symptoms of COVID-19. सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम है फीवर और चिल्स. 99% लोगों को फीवर होता है. सेकेंड मोस्ट कॉमन सिम्टम है फटीग. फटीग का मतलब है थकावट की फीलिंग. 77% लोगों में ये सिम्टम होता है जिनको COVID-19 इन्फेक्शन होता है. फिर नेक्स्ट है ड्राई कफ. 59% लोगों में ये पाया जाता है. लॉस ऑफ एपेटाइट. एपेटाइट का मतलब होता है भूख, भूख ना लगना. 40% लोगों में ये पाया जाता है. फिर बॉडी एक्स 35% लोगों में होता है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस चढ़ता है. यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रीद, और ये 31% लोगों में पाया जाता है. नेक्स्ट इज म्यूकस और फ्लेम. इसमें जी साइलेंट है. ये 27% लोगों में पाया जाता है. इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स हैं जैसे कि सोर थ्रोट, गला खराब होता है. वीजिंग, सांस लेते समय आवाज़ आती है सांस की. चेस्ट पेन, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल. नोजिया का मतलब उल्टी की फीलिंग. नोजिया और वॉमिटिंग, एक्चुअली वॉमिटिंग हो जाती है. और डायरिया. आगे हम दो वर्ड्स करेंगे जो आपस में एंटोनिम्स हैं. एंटोनिम का मतलब विपरीतार्थक, आपस में उनका ऑपोजिट मीनिंग है. और वो दो वर्ड्स हैं सिवियर और माइल्ड. तो सिवियर का मतलब होता है कोई चीज़ जो बड़ी हार्श है, बड़ी सख्त है, बहुत इंटेंस है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ सिवियर हेडेक. बड़ा सख्त मुझे सर दर्द है. और माइल्ड का मतलब होता है मॉडरेट, ठीक ठाक, हल्का, नॉट हार्श और एक्सट्रीम. और सेंटेंस है शी हैज़ अ माइल्ड फीवर. उसको हल्का सा बुखार है. Okay, again we are going to do two words which are antonyms, and the words are symptomatic and asymptomatic. देखें, जो पेशेंट है कोविड का वो हो सकता है symptomatic, that is showing signs of an illness. Example, it is much easier to identify people infected with coronavirus if they are symptomatic. इसका antonym है asymptomatic, not showing any signs of illness, in spite of the fact that the person is infected with that disease. For example, she had no idea her husband had coronavirus because he was asymptomatic. The next word is carry. It's a very simple word, fairly common. All of you know the meaning of this word. Uthana, utha ke le jana. But remember, we are discussing this word in the context of coronavirus. तो उस हिसाब से इसका मीनिंग है to be infected with an illness and able to pass it to others. For example, many people may carry coronavirus without knowing it because those people are asymptomatic.
they don't show any signs of the illness. और इसी से आता है अगला वर्ड carrier, a person or an animal that can transmit a disease to others, whether suffering from it themselves or not. For example, people who are asymptomatic can still be carriers. Maybe a person himself will not show any signs of the disease, he will not fall sick, he will not have fever, he will not have cough, but he may be carrying the virus and he may be able to pass it on to others. The next term is stringent measures. ये term आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे. देखें, stringent का मतलब होता है strict और measures का मतलब होता है steps. Example है, the government must take stringent measures to control the spread of COVID-19. The next term is flattening the curve. आपने ये बहुत सुना होगा. It is basically a public health strategy to slow down the spread of an epidemic or pandemic so that the peak number of people requiring care at a time is reduced and the healthcare system does not get overwhelmed. कहने का मतलब कि एपिडेमिक या पेंडेमिक की स्प्रेड में वो जो बहुत हाई और शार्प पीक बनती है वो पीक ना बने. वो जो नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने वो इन्फेक्शन को कैच करना है वो स्प्रेड हो जाएं ओवर अ लॉन्गर टाइम पीरियड. और जो लॉकडाउन लगाती हैं गवर्नमेंट्स, उसका बेसिकली यही पर्पस होता है कि इन्फेक्शन धीरे धीरे फैले ताकि हॉस्पिटल्स डील कर सकें पेशेंट्स के साथ, एकदम से ओवरवेल्म ना हो जाएं, लाइनें ना लग जाएं हॉस्पिटल्स के बाहर. एग्जाम्पल, social distancing can help flatten the curve of COVID-19. Next term is precautionary measures. देखिए, precaution का मतलब होता है एहतियात और measures का मतलब हमने अभी सीखा steps. तो precautionary measures का मतलब है steps that can be taken in order to be safe. Example sentence: The Prime Minister has appealed to the people to take precautionary measures to check the spread of COVID-19. The next word is ban. Ban करना होता है किसी चीज़ को prohibit करना या forbid करना. और एग्जाम्पल है कि द गवर्नमेंट हैज़ बैंड लार्ज गैदरिंग्स टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द वायरस. अच्छा, बैन जो है दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ नाउन. In this sentence, ban has been used as a verb, but it can also be used as a noun. For example, इसी sentence में हम कह सकते हैं that the government has placed a ban on large gatherings to stop the spread of the virus. Next term है जी blanket ban. और blanket ban का मतलब है a complete ban with no concessions, no exceptions, जिसमें सारा कुछ ही cover हो जाए. Example sentence है The Indian government has placed a blanket ban on all incoming flights. The next word is restrict. Restrict means to limit something, किसी चीज़ पे रोक लगा देनी. Example sentence: The government has restricted travel in order to contain the transmission of COVID-19. Restrict का noun होता है restriction, और बहुत बार देखेंगे आप इसको plural form में यूज होता है restrictions. तो sentence हम बना सकते हैं कि The government has imposed many restrictions on travel. The next word is vulnerable. Vulnerable का मतलब है weak and easily hurt. कोई भी ऐसा आदमी जिसके ऊपर आसानी से असर हो सकता है, जिसको आसानी से नुकसान पहुंच सकता है किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं vulnerable. और इस पेंडेमिक में सबसे vulnerable ग्रुप्स कौन से हैं? एक तो ओल्ड पीपल, उनको बड़ी जल्दी होता है ये इन्फेक्शन और बहुत नुकसान पहुंचाता है उनको. उसके अलावा वो लोग वल्नरेबल हैं जिनको पहले से कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, लंग्स की कोई प्रॉब्लम है. एग्जाम्पल सेंटेंस है कि द होल कम्युनिटी मस्ट कोऑपरेट टू प्रोटेक्ट द एल्डरली हु आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप फ्रॉम कोविड-19. द नेक्स्ट वर्ड इज कोमॉर्बिडिटी, which means the presence of more than one underlying health related conditions. पहले से कोई बीमारी है, पहले से ओबेसिटी है, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इस तरह के लोगों को कोविड-19 बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है. इट कैन ऑल्सो प्रूव फेटल. एग्जाम्पल सेंटेंस: द कोरोना वायरस कैन बी वेरी डेंजरस फॉर पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज लाइक हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ एंड डायबिटीज़. Next term is contact tracing. Means identification and monitoring of people who may have had contact with an infectious person. तो देखिए, जिन कंट्रीज़ ने कोरोना वायरस पर
काबू पा लिया है, उन्होंने जो स्ट्रेटजीज़ यूज़ की हैं उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इसके अलावा टेस्टिंग और लॉकडाउन और क्वारंटाइन। इन्हीं स्ट्रेटजीज़ की हेल्प से चाइना ने और कई सारे और कंट्रीज़ ने कोविड-19 को कंट्रोल कर लिया है। Examples in hence, contact tracing and testing can help the authorities to control the spread of the disease. Next word is quarantine. आप सबको इसका मीनिंग पता है अब। A specific period of time in which a person or animal that has a disease or may have one must stay or be kept away from others in order to prevent the spread of the disease. ये असल में बड़ा पुराना वर्ड है। पुराने ज़माने में जब कोई शिप किसी पोर्ट या हार्बर में एंटर करता था तो जो उसका क्रू है उसको इमीडिएटली नहीं उतरने देते थे। उसको 1 वीक के लिए 10 डेज़ के लिए शिप पे ही रहना पड़ता था सारे क्रू मेंबर्स को, टू मेक श्योर कि वो कोई डिजीज़ कोई इन्फेक्शन ना लेके अंदर आ जाए। एग्जाम्पल, द डॉक्टर अलाउड मी टू गो होम ऑन द कंडीशन, इस शर्त पर, ऑन द कंडीशन दैट आई वुड स्टे इन क्वारंटाइन फॉर एटलीस्ट 7 days। इस सेंटेंस में तो क्वारंटाइन एज अ नाउन यूज़ हुआ है, टू स्टे इन क्वारंटाइन, लेकिन क्वारंटाइन को एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसका मतलब होता है किसी को अलग कर देना फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एंड एन एग्जाम्पल सेंटेंसेस, द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट ऑल इंटरनेशनल अराइवल्स विल बी क्वारंटाइन्ड फॉर 14 days। इन दिस सेंटेंस, क्वारंटाइन इज बीइंग यूज्ड एज अ वर्ब। नेक्स्ट वर्ड इज सेल्फ आइसोलेट। खुद ही अपने आप को अलग कर लेना, टू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स when you have or may have an infectious disease. Example, all the people who came into contact with the COVID patients have been advised to self-isolate. इसका noun है self-isolation, the act of staying away from others in order to prevent the transmission of an infectious disease. Example, she went into self-isolation after her husband was tested positive for COVID-19. Then we have vaccinate, to give someone a vaccine, usually by injection, to prevent them from getting a disease. तो एक्चुअली वैक्सीन का मतलब क्या होता है? वायरस या जर्म्स या बैक्टीरिया वीक फॉर्म में किसी को देना ताकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाएं, उसका इम्यून सिस्टम तैयार हो जाए उस इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। एग्जाम्पल सेंटेंस है, the only way to beat the coronavirus is to vaccinate as many people as possible as soon as possible. So vaccinate is a verb and the noun form of this word is vaccination. Vaccination means treatment with a vaccine to produce immunity against a disease. देखिए, इम्यून का मतलब होता है असर ना होना किसी चीज़ का। इम्यूनिटी का मतलब होता है डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होना, शरीर में उससे फाइट करने की ताकत होना। Example sentence, people can catch the coronavirus even after vaccination, but the symptoms are usually mild. मतलब आपको अगर वैक्सीनेशन लग जाएगी, वैक्सीनेट अगर आप हो जाएंगे, तब भी आपको कोरोना वायरस तो हो सकता है, लेकिन फिर उसके सिम्टम्स जो हैं बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं होंगे, सिम्टम्स माइल्ड होंगे। योर बॉडी विल बी इजीली एबल टू फाइट द इन्फेक्शन। नेक्स्ट टर्म इज एंटी वैक्सर। इसके दो स्पेलिंग चलते हैं, सिंगल एक्स और डबल एक्स, दोनों तरह से लिखा जाता है। डबल एक्स से ज़्यादा कॉमन है। एंटी वैक्सर इज़ अ पर्सन हु इज़ अगेंस्ट वैक्सीन्स ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स और बिकॉज ही थिंक्स वैक्सीन्स आर डेंजरस टू हेल्थ। पूरी दुनिया में कई कंट्रीज़ में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हम अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाने देंगे क्योंकि इसके डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इससे बीमारियां हो सकती हैं, ये गवर्नमेंट की कॉन्स्पिरेसी है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और हमारा रिलीजन हमें परमिशन नहीं देता कि हम वैक्सीन लगवाएं। सो इस तरह के बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोग वैक्सीनेशन के अगेंस्ट हैं। नेक्स्ट टर्म इज़ हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड का मतलब होता है झुंड। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है प्रोटेक्शन फ्रॉम अ डिजीज़ रिजल्टिंग फ्रॉम अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन गेनिंग इम्यूनिटी। जब किसी पॉपुलेशन में बहुत सारे लोगों को वो इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका होता है या वैक्सीनेशन लग चुकी होती है, तो क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है, वायरस है फॉर एग्जांपल, उसको होस्ट नहीं मिलता,
उसको कोई ऐसा ह्यूमन बॉडी नहीं मिलती जिसमें वो जाके रह सके, तो फिर वो जो वायरस है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है कि इंडिया इज स्लोली मूविंग टुवर्ड्स बिल्डिंग हर्ड इम्यूनिटी। The next word is lockdown. All of you know this term. We have all gone through this experience. The meaning of lockdown is an emergency situation in which people are not allowed to freely enter, leave, or move around in an area because of danger. Example sentence: the first COVID-19 lockdown in India was imposed on 25th of March 2020. The next word is hotspot. In the context of coronavirus, इसका मतलब है a limited area in which a large number of people have tested positive for COVID-19 in several smaller groups or clusters. Example: the administration has decided to seal all hotspots in the city. तो बिग सिटीज़ में कोविड-19 के स्प्रेड को कंट्रोल करने का ये तरीका है, हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। वो एरियाज़ जहाँ पे कई सारे लोगों को कोविड-19 है, उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके उनको सील कर दिया जाता है ताकि वहाँ एंटर ना करे कोई, वहाँ से कोई बाहर ना जाए, सो दैट इन्फेक्शन कैन बी कंटेन्ड, एक बंदे से दूसरे बंदे को इन्फेक्शन ना फैले। नेक्स्ट टर्म इज इंक्यूबेशन पीरियड। द टाइम बिटवीन व्हेन यू कॉन्ट्रैक्ट अ वायरस एंड व्हेन द सिम्टम्स स्टार्ट टू अपीयर। आपकी बॉडी में वायरस जब एंटर होता है उसके बाद कुछ दिन लगते हैं उस वायरस को ग्रो करने में, और पहली बार जब आपको उसके सिम्टम्स दिखते हैं, वो जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर द नोवेल कोरोना वायरस इज समवेयर बिटवीन 2 to 14 days आफ्टर एक्सपोजर। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेन, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल, इंसेक्ट, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म whose characteristics, qualities are slightly different in some way from other members of the same group. बाकी के मेंबर से थोड़ी सी क्वालिटीज जिसकी डिफरेंट है, एक प्रकार होती है स्ट्रेन। एग्जाम्पल: साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्ट्रेन ऑफ द वायरस विच इज मच मोर डेंजरस। नेक्स्ट वर्ड इज म्यूटेट, टू डेवलप न्यू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज ऑफ अ परमानेंट चेंज इन द जीन्स। एग्जाम्पल: all viruses mutate as they make new copies of themselves to spread and thrive. तो कोरोना वायरस जब शुरू हुआ था उसके बाद कई बार म्यूटेट कर चुका है, अपनी शक्ल को थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहता है वो विथ टाइम। म्यूटेट इज अ वर्ब एंड द नाउन फॉर्म इज म्यूटेशन। इट मीन्स अ परमानेंट चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू अ चेंज इन अ डीएनए सीक्वेंस। देखिए, म्यूटेशन कई वजह से हो सकती है। कई बार जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी कॉपीज़ बनाता है उसमें मिस्टेक हो जाती है और डीएनए सीक्वेंस उसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, या कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण भी म्यूटेशन हो जाती है, जैसे कि एक्सपोजर टू सर्टन केमिकल्स और रेडिएशन। एग्जाम्पल इज द नोवेल कोरोना वायरस हैज़ अंडरगॉन मल्टीपल म्यूटेशंस सिंस इट फर्स्ट अपीयर्ड। तो वायरस होता है ना, जो उसमें मेन प्रॉब्लम यही होती है वैक्सीनेशन बनाने में, वायरस अपनी शेप को, अपनी शक्ल को थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहता है विद टाइम। तो जो भी वैक्सीन आप बनाएंगे वो पुरानी हो जाएगी, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल हैव टू मेक मॉडिफिकेशंस इन द वैक्सीन। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यू हैव टू कीप चेंजिंग द वैक्सीन in order to fight the new forms of the virus. The next word is unprecedented, never done or known before, जो पहले कभी ना हुआ हो. For example, around the world, governments imposed unprecedented lockdowns to stop the spread of coronavirus. ये वर्ड का ओरिजिन आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ. एक वर्ड होता है प्रिसीड, जिसका मतलब होता है टाइम में पहले आना, किसी चीज़ से पहले होना. एक वर्ड होता है प्रोसीड, PRO. प्रोसीड का मतलब तो आगे बढ़ना होता है. ये मैं बोल रहा हूँ प्रिसीड, PRE, पहले होना. प्रिसीड से बनता है प्रेसिडेंट, जो इवेंट कोई पहले हुआ हो, जिसको हम एज एन एग्जाम्पल या गाइड ले सकते हैं फॉर द फ्यूचर. और फिर उससे वर्ड बनता है अनप्रेसिडेंटेड, जो पहले कभी ना हुआ हो. नेक्स्ट टर्म है सोशल डिस्टेंसिंग. आप सबको पता है ये. इट मीन्स कीपिंग अ सेफ स्पेस, अ सेफ डिस्टेंस एटलीस्ट 6 feet or 2 arm lengths between yourself and other people who are not from your household, especially to slow the spread of a contagious disease. Example,
People must follow social distancing guidelines to beat the coronavirus. वैसे बहुत सारे लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि इंस्टेड ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग वी शुड यूज़ द टर्म फिजिकल डिस्टेंसिंग. इट इज़ अ बेटर टर्म, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा इस तरह का मीनिंग होता है कि यू आर कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी, एंड मैनी पीपल आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू contact people, not being able to meet other people freely. Next term is very simple, face mask. It is a protective covering for the face or part of the face. Example sentence: the government has made wearing a face mask mandatory in public places. Mandatory का मतलब है compulsory. अच्छा, ये बता दूं आपको, इसकी pronunciation जो है ब्रिटिश और अमेरिकन प्रोनंसिएशन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है. ब्रिटिश प्रोनंसिएशन तो है मैंडेटरी, लेकिन अमेरिकन इसको इस तरह से बोलते हैं मैंडेटरी. द नेक्स्ट टर्म इज ईबोला हैंडशेक, अ वे ऑफ ग्रीटिंग इन विच पीपल टच एल्बोज इंस्टेड ऑफ शेकिंग हैंड्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ अ कंटेजियस डिजीज. एक तरह का लोगों को ग्रीट करने का तरीका है जिसमें एल्बोज को टच किया जाता है, हैंड्स शेक नहीं किए जाते. Example: the Ebola handshake became popular in Africa in 2014. 2014 में ईबोला का आउटब्रेक हुआ था अफ्रीका में, और ये तरीका ग्रीट करने का लोगों को बड़ा पॉपुलर हुआ था उस समय. नेक्स्ट वर्ड इज फ्रीक्वेंटली. इसका मतलब होता है काफ़ी अक्सर, रेगुलरली, ऑफन. एग्जाम्पल: यू शुड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड एन इन्फेक्शन. नेक्स्ट वर्ड है डिसइंफेक्ट. इसका मतलब है टू क्लीन समथिंग स्पेशली विद अ केमिकल इन ऑर्डर टू किल जर्म्स. फॉर एग्जाम्पल, ऑल स्कूल्स हैव बीन ऑर्डर टू डिसइंफेक्ट देयर प्रेमिसेस. प्रेमिसेस का मतलब होता है एरिया. द नेक्स्ट वर्ड इज सैनिटाइज. इसका मतलब है किसी चीज़ को क्लीन बनाना, हाइजीनिक बनाना, डिसइंफेक्ट करना. एग्जाम्पल: पीपल हैव बीन एडवाइज्ड टू सैनिटाइज ऑल पैकेजेस that come from outside their homes. और सैनिटाइज करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं सैनिटाइज़र. इट इज़ अ प्रोडक्ट, अ सब्सटेंस, अ फ्लूइड विच इज़ यूज टू किल जर्म्स ऑन स्किन एंड ऑब्जेक्ट्स. एग्जाम्पल: यू मस्ट यूज़ अ हैंड सैनिटाइज़र आफ्टर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड. ये वर्ड आया है सैनिटरी से. सैनिटरी का मतलब होता है क्लीन एंड हाइजीनिक. अनसैनिटरी का मतलब होता है डर्टी एंड अनहेल्थी. और एक वर्ड है इस ग्रुप में सैनिटेशन. इसका मतलब होता है टू कीप प्लेसेस क्लीन एंड हेल्दी, स्पेशली बाय प्रोवाइडिंग अ सीवेज सिस्टम एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. आपको पता है कि सैनिटरी स्टोर्स होते हैं जहाँ से आपको अपने घर को, जब आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं घर की, तो उसके लिए पाइप्स और टैप्स और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं सारी. नेक्स्ट टर्म है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बेसिक ढांचा. तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, ट्रेन्ड नर्सेस एंड एडवांस्ड मशीन्स, जिसकी हेल्प से लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं. एग्जाम्पल: इंडिया नीड्स टू कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्योंकि हमारी कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वीक है. रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में क्लिनिक नहीं होता, हॉस्पिटल नहीं होता, एंड पीपल हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स. तो अभी बहुत साल लगेंगे. इंडिया अगर कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करता रहेगा तब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो पाएगा. ओके, नेक्स्ट टर्म इज पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़. इट मीन्स एस्टैब्लिशमेंट्स विच हेल्प डिलीवर health services to ordinary citizens such as hospitals, clinics, nursing homes, diagnostic centers जहाँ टेस्टिंग होती है, blood banks, ambulances, education centers, etc. Example: the government must make efforts to ramp up public health facilities. Ramp up का मतलब होता है किसी चीज़ के लेवल को या अमाउंट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना. Next term, which is being used quite a lot during the COVID-19 pandemic, is personal protective equipment, PPE, which means special clothing, headgear, goggles, masks, and other garments that shield or protect people from injury or infection.
Example, the PPE kits are used by the doctors and nurses only once and destroyed after use. Next term is remote consultation. Remote का मतलब होता है दूर से. Remote consultation means consultation, सलाह लेना, over the phone, through email or via video link. Example, during the COVID-19 pandemic, many doctors provided only remote consultation to their patients. So those doctors did not want to come into contact with COVID-19 patients so as to protect them from the virus. The next word is swab. इसकी pronunciation please note करें. The word is swab. It's a piece of soft material used by a doctor or nurse for cleaning wounds or for taking a sample from somebody's body for testing. Example, people are tested for the coronavirus with a swab. तो कोरोना वायरस का टेस्ट कैसे होता है? आपके थ्रोट से, आपके नोज से एक एक स्वॉब लिया जाता है और उसको फिर टेस्ट किया जाता है उस कोरोना वायरस के लिए. नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स. द स्प्रे प्रोड्यूस्ड व्हेन पीपल ब्रीथ, स्पीक, कफ खांसी करते हैं और स्नीज छींक मारते हैं, responsible for the spread of an infectious disease. For example, healthcare workers wear protective clothing to guard against respiratory droplets from patients. Next word is contaminate. It means to make something impure, to pollute something or to make it dirty, in this case to infect something. For example, the virus can survive in landfill sites and contaminate groundwater. लैंडफिल साइट का मतलब होता है एक ऐसा एरिया शहर के बाहर जहाँ गार्बेज को डंप किया जाता है और इस तरह की जो साइट्स हैं वहाँ जर्म्स और बैक्टीरिया और वायरस सर्वाइव करते हैं. इसके अलावा टॉक्सिक केमिकल्स भी होते हैं बहुत सारे और वो धीरे धीरे सॉइल में लीच करते हैं और ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देते हैं, कंटेमिनेट कर देते हैं. उसके बाद उस ग्राउंड वाटर को जो लोग यूज़ करते हैं उन लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं. Next word is fomite, an object that becomes contaminated and can transmit illness from one person to another, like surfaces, clothes, mobile phones, toys, door handles, etc. कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर वायरस है और जो भी उसको टच करेगा उसको इन्फेक्शन हो सकता है. Example, the coronavirus spreads through physical contact, droplets, and fomites. The next term is panic buying. It means buying large quantities of particular products because of fears of shortages. देखिए पैनिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाना या डर जाना. It can also be used as a noun. इसका मतलब बहुत ज़्यादा डर या घबराहट की फीलिंग को भी कहते हैं. Example, as soon as the lockdown was announced, many people started panic buying essential goods. लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए और essential goods हैं खाने पीने का सामान, उसकी पैनिक बाइंग लोगों ने शुरू कर दी. आफ्टर दैट वी हैव स्टॉक पाइलिंग. इट मीन्स कलेक्टिंग एंड कीपिंग अ लार्ज सप्लाई ऑफ समथिंग. स्टॉक का मतलब है सामान. जैसे किसी शॉप पे कोई सामान ख़त्म हो गया तो कहते हैं ना आउट ऑफ स्टॉक है जी. और पाइल का मतलब होता है ढेर या ढेर लगाना. तो स्टॉक पाइलिंग का मतलब है किसी चीज़ के ढेर लगा लेना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इकट्ठा कर लेना किसी चीज़ को. एग्जाम्पल, stockpiling of food items can lead to rise in prices. Next is ventilator, a machine that helps patients breathe when they can't breathe on their own. A machine that pushes air, basically oxygen, into a patient's lungs because he cannot breathe on his own. Example, he tested positive for coronavirus and was on a ventilator for a week. देखिए ये वर्ड कहाँ से आया है? वेंट. वेंट का मतलब VENT. वेंट का मतलब होता है एन ओपनिंग दैट अलाउज एयर, स्मोक और गैस टू एस्केप और एंटर एन इनक्लोज्ड स्पेस. कोई भी ऐसी ओपनिंग जिससे एयर अंदर आ सकती है, बाहर जा सकती है. फिर इसके बाद वर्ड होता है, इससे वर्ड आता है वेंटिलेट. वेंटिलेट का मतलब है हवा लगवाना, हवा को अंदर सर्कुलेट करने देना रूम में या बिल्डिंग में. और फिर इसके बाद वेंटिलेशन का मतलब होता है फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर. जैसे कहा जाता है कि इस घर की वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, मतलब कई ओपनिंग्स हैं जिससे एयर, फ्रेश एयर अंदर आ सकती है.
The next term is acceleration phase. A period of high growth. ऐसा पीरियड जिसमें कोई चीज़ बड़ी तेज़ी से स्प्रेड करती है या ग्रो करती है. Example, many parts of the country are in the acceleration phase of COVID-19 pandemic. ये वर्ड आया है एक्सेलरेट से. एक्सेलरेट का मतलब स्पीड का बढ़ना या बढ़ाना, और डिसेलरेट का मतलब होता है स्पीड का कम करना या कम होना, और फेज का मतलब होता है कोई पीरियड. नेक्स्ट टर्म इज साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस. इसका मतलब होता है इमोशनल सफरिंग एंड द अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड. डिस्ट्रेस का मतलब होता है दुख, परेशानी. एक ऐसी फीलिंग होती है कि आप हार गए हैं और कोप नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन के साथ. एग्जाम्पल, caring for COVID-19 patients is causing a great deal of psychological stress to healthcare workers. Next word is anxiety, a feeling of worry or nervousness about something with an uncertain outcome. जब आपको बहुत घबराहट होती है कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होने वाला है, उस फीलिंग को बोलते हैं एंग्जाइटी. और इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो है anxious. If a person is feeling anxious, then he is experiencing anxiety. Example, there's a lot of stress and anxiety among people due to COVID-19. The next term is death toll. Death toll का मतलब है कितने लोगों की मौत हुई है, the number of deaths. For example, the COVID-19 death toll in Europe has crossed 300,000, 3 lakh. The next word is fatality. इस वर्ड को फेटेलिटी और फेटेलिटी दोनों तरह से बोला जाता है. फेटेलिटी का मतलब होता है डेथ. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ल्ड वॉस्ट इन हॉरर एज द नंबर ऑफ कन्फर्म्ड केसेज ऑफ COVID-19 एंड फेटेलिटीज इन चाइना रोज रैपिडली. All right, that's the end of the video. My name is Ravi Basin and this video has been brought to you by Drone Academy, Firozpur City. I hope you'll find it useful. I would advise you to note down the meanings of these words and the example sentences in your own hand, because that is the only way to store them in your long-term memory. If you like the video, do give me a thumbs up, and you can also give me suggestions regarding what kind of videos you would like me to make in the future. If you have any doubt, query or suggestion, you can also contact me via email. My email address is given in the channel description. I wish you the best of luck for your IELTS preparation. See you in the next video.